السلام علیکم۔ ہماتن گوش میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل، جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان، گرداب۔ گرداب، قسط نمبر 22۔ کوٹھی کے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے ذرا سے کتے بھونکے تو تھے، لیکن پھر گوشت کے اسی ٹکڑے کی طرف متوجہ ہو گئے جس پر زہر لگا دیا گیا تھا۔ گوشت کا یہ لالچ ان کی زندگی کا چراغ گل کر گیا تھا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی تھی جن کی حفاظت پر وہ مامور تھے۔ ماہبانوں کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ وہاں پر کوٹھی کی حفاظت کے لیے صرف ایک چوکیدار اور تھا۔ باقی ملازمین رات 11 بجے چھٹی کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ صرف باورچی خانے کی ذمہ داری سنبھالنے والے ایک میاں بیوی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں قیام پذیر تھے، لیکن وہ بھی آج کل 2 دن سے اپنے خاندان کی کسی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔ ماہبانو اندازہ کر سکتی تھی کہ جن لوگوں نے کتوں کو خاموش کروایا ہے وہ یہاں موجود چوکیدار کو بھی خاموش کر چکے ہوں گے۔ اب یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خاموشی عارضی تھی یا پھر مستقل۔ ماہبانوں کا دل چاہتا تھا کہ وہ پلٹ کر بھاگتی ہوئی کوٹھی سے کہیں دور بھاگ کر چلی جائے، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اس کا بیگ یتیم خانے میں ہی رہ گیا تھا۔ فی الحال وہ موتی والا کی مہمان تھی اور اسی کے گھر پر رہ کر گزارا کر رہی تھی۔ پھر اس اجنبی شہر میں اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہ تھا۔ رات اس پہر وہ کوٹھی سے نکل کر کہاں جاتی، اور جاتی بھی تو جانے کس مصیبت میں پھنس جاتی۔ ایک دوسرا خیال اسے موتی والا کی بیوی کے بارے میں بھی تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو لوگ موتی والا کی کوٹھی میں داخل ہوئے ہیں وہ اس کی تلاش میں ضرور آئے تھے۔ وہ اپنی وجہ سے موتی والا اور اس کی بیوی کو مصیبت میں گرفتار چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی، چنانچہ اس نے کوٹھی سے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کیا اور کوٹھی کے اس مرکزی حصے کی طرف بڑھ گئی جہاں پر موتی والا اور اس کی بیوی کی رہائش تھی۔ انیکسی اس رہائشی حصے کے عقب کی جانب کو تھی۔ ماہبانوں نے سامنے والے دروازے سے جانے کے بجائے پچھلی سمت موجود اس کھڑکی کا رخ کیا جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ یہ موتی والا اور اس کی بیوی کے بیڈ روم میں ہی کھلتی ہے۔ کھڑکی کے قریب جا کر ماہبانوں کو مایوسی ہوئی۔ کھڑکی تو بند تھی اور اندر سے اس کے گرد پردے بھی کھینچے ہوئے تھے۔ مایوسی کے اس عالم میں وہ پلٹنے کا ارادہ کرتی ہی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ کھڑکی کی ایک جانب سے پردہ تیزی سے سرکا ہے۔ ماہبانو اس حصے پر اپنی ناک چپکا کر اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور اسی روشنی میں ماہبانو بہت واضح طور پر اس شخص کو دیکھ سکتی تھی جو پورے انہماک سے کھلی تجوری میں سے زیور اور روپے سمیٹ کر اپنے بیگ میں بھرتا چلا جا رہا تھا۔ اس شخص کی حرکت دیکھ کر ماہبانو مخمصے میں پڑ گئی۔ اگر وہ ماہبانوں کی تلاش میں یہاں تک آنے والا چودھری افتخار کا کوئی بندہ تھا تو اسے مال سمیٹنے کے بجائے صرف اور صرف ماہبانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی نا۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ یہ شخص اکیلا لوٹ مار میں لگا ہو اور اس نے اپنے ساتھیوں کو ماہبانوں کی تلاش پر مامور کر رکھا ہو، اور وہ لوگ کوٹھی کے مختلف کمروں میں ماہبانوں کو تلاش کرتے پھرتے ہوں۔ اس خیال نے ماہبانوں کی ریڑھ کی ہڈی میں اچانک سے سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ اس نے ایک جھرجھری لے کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور تیزی سے نظریں کمرے میں مصروف شخص پر سے ہٹا لی، لیکن وہ جس زاویے سے اندر جھانک رہی تھی اس زاویے سے اسے پورا کمرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی نظر کی حد بیڈ کے ایک حصے پر جا کر ختم ہو جاتی تھی اور وہاں اس موتی والا اور اس کی بیوی کے وجود نظر نہیں آتے تھے، لیکن پھر کچھ اور تھا جو اسے ضرور نظر آ گیا۔ بیڈ کی چادر پر لمحہ بلمحہ پھیلتا ہوا وہ دھبا یقینی طور پر سرخ رنگ کا تھا
اور ایسی سرخی صرف انسانی خون کی ہی ہو سکتی تھی۔ وہ خون کس کا ہو سکتا تھا، یہ سمجھنے میں مہبانوں کو ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ بیڈ کی چادر یقیناً ان دو لوگوں کے خون سے ہی رنگی گئی تھی جو ہر رات اس بیڈ پر محو خواب ہوا کرتے تھے۔ آج شاید انہیں اپنے ہی بستر پر ابدی نیند سلا دیا گیا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد مہبانوں کے لیے مزید وہاں کھڑے رہنا بالکل ممکن نہ رہا۔ وہ خیال جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے قدم کوٹھی سے باہر جانے کے لیے روک لیے تھے، یکدم ہی اس کے ذہن سے فوراً نکل گیا، اور اب وہ ہر حال میں یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اپنے نکل بھاگنے کی اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے اس نے کھڑکی کے شیشے پر چپکا اپنا چہرہ ہٹا کر جیسے ہی پلٹنا چاہا، کسی نے یکدم اس کے وجود کو مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ مہبانوں نے اضطراری طور پر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اسے دبوچنے والے نے اس کے کھلے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تھان پانسی مہبانوں ایک مضبوط مردانہ گرفت میں جکڑی سوائے پھڑکنے کے اور کیا کر سکتی تھی۔ مہبانوں پورا زور لگا رہی تھی کہ کسی طریقے سے خود کو جکڑنے والے کی گرفت سے آزاد کروا سکے، لیکن گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ شور مت مچانا، آرام سے بیٹھی رہو، میں تمہارا دشمن نہیں دوست ہوں۔ پیچھے سے اسے گرفت میں لینے والے شخص نے اس کے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی اور اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سے بھی ہٹا لیا۔ اس نے پلٹ کر جکڑنے والے کو غور سے دیکھا۔ تاریکی کے باوجود وہ اسے شناخت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ موتی والا کا ڈرائیور تھا، لیکن رات کے اس پہر اس کی یہاں کوٹھی میں موجودگی کی وجہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہبانوں نے دھیمی آواز میں اس سے دریافت کیا۔ یہ وقت سوال جواب کا بالکل نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور وہ بھی جلدی۔ اس نے مہبانوں کا ہاتھ تھاما اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ بیرونی گیٹ کی جانب ہی تھا۔ مہبانوں کے حواس موتی والا کے بیڈ روم کا منظر دیکھ کر ابھی تک مختل تھے، اس لیے وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ ہی چلتی چلی گئی۔ اتنی بڑی کوٹھی میں اس وقت صرف اور صرف خو کا عالم طاری تھا۔ وہ جو اس وقت کوٹھی میں گھسے لوگ لوٹ مار کر رہے تھے، وہ بھی اندرونی حصے میں مصروف تھے۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں ذیلی گیٹ سے گزر کر آرام سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلنے کے بعد ڈرائیور نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی۔ اسے بھی ڈرائیور کی پیروی کرنی پڑی۔ اس علاقے میں رہنے والے تمام افراد کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں موجود ہیں، اس لیے یہاں دن کے وقت بھی پبلک ٹرانسپورٹ مشکل سے ہی ملتی ہے۔ رات کے اس پہر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی سواری مل جائے۔ سواری کے لیے ہمیں مین روڈ تک پہنچنا ہوگا۔ ممکن ہے کوئی رکشا یا ٹیکسی وہیں سے مل جائے۔ چلتے چلتے اس نے مہبانوں کو اطلاع دی۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ جب اس کے ساتھ کوٹھی سے نکل ہی پڑی تھی تو اس کی پیروی بھی تو کرنی تھی۔ اس کی رات کے اس پہر کوٹھی میں موجودگی کی وجہ سمجھ نہ آنے کے باوجود اسے اس بات پر بھی یقین تھا کہ وہ کوٹھی میں موجود افراد کے مقابلے میں اسے کم از کم کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے وہ یقیناً عادی جرائم پیشہ لوگ تھے، اور اسے یقین تھا کہ انہوں نے موتی والا اور اس کی بیوی کو قتل کر کے رکھ دیا ہے۔ موتی والا کے بیڈ روم میں موجود شخص جس طرح اس کی تجوری سے مال سمیٹتا نظر آ رہا تھا، اس بات سے تو یہی اندازہ تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی گروہ کوٹھی میں گھس آیا ہے۔ اسے ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ کہیں وہ چودھری کے بندے نہ ہوں۔ جس طرح چودھری نے اس کی دارالامان میں موجودگی کا پتہ چلا لیا تھا، اسی طرح یہاں موجودگی کا بھی تو پتہ چلایا جا سکتا تھا نا۔ لیکن اس خیال کو کوٹھی میں موجود افراد کا طرز عمل کمزور بناتا تھا۔ اگر وہ چودھری کے بندے تھے اور اس کی تلاش میں آئے تھے تو انہیں لوٹ مار میں ملوث ہونے کے بجائے پوری کوٹھی میں پھیل کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ حقیقت جو بھی تھی، فی الحال اس کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنی پناہ گاہ سے بالکل محروم ہو چکی تھی، اور ایک ایسے شخص پر بھروسہ کر کے جو اس کے لیے فقط صورت آشنا تھا، اس کے ساتھ جانے پر مجبور تھی۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے ساتھ ساتھ چلتے مین روڈ کی طرف آ گئے۔ وہاں پر بھی کافی سناٹا تھا۔ سڑک سے گزرنے والی اکا دکا ٹیکسیوں میں پہلے ہی کوئی مسافر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں کسی خالی ٹیکسی کے انتظار میں رکنے کے بجائے چلتے ہی رہے۔ تقریباً 10 منٹ چلنے کے بعد انہیں ایک چوک پر خالی ٹیکسی کھڑی مل گئی، لیکن ڈرائیور اگلی نشست پر سٹیئرنگ پر سر ٹکائے سواری کے انتظار میں اونگتا نظر آ رہا تھا۔ خان، بھاٹی گیٹ تک جانا ہے، چلو گے؟ ڈرائیور نے ٹیکسی ڈرائیور کو پکار کر سوال کیا۔
चलेगा नहीं तो और क्या करेगा। हम यहाँ इस वक्त सवारी के इंतजार में ही तो ख्वार होता है। झट सीधा होकर वो फौरन बैठ गया। चादर से आधे चेहरे को छुपाए खड़ी महबानों को देखकर उसकी आंखों में एक रश्क सा उतर आया। ताहम जबान से वो कुछ कहे बगैर सीट पर बैठे बैठे ही झुककर टैक्सी के दोनों पिछले दरवाजों के लॉक खोलना शुरू कर चुका था। वो दोनों टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ने अपना सफर शुरू किया। दौरान सफर उन्होंने एक दूसरे से बिल्कुल कोई बात न की। हालांकि महबानों के जहन में कई सवालात कुलबुला रहे थे, मगर वक्त का तकाजा यही था कि फिलहाल खामोश बैठा रहा जाए। अब किस तरफ लेना है जनाब? इस दबीज खामोशी को एक तवील वक्फे के बाद टैक्सी ड्राइवर ने ही तोड़ा। वो मतलूबा इलाके में पहुंच गया था और अब हतमी मंजिल की निशानदही चाहता था। बस यहीं उतार दो, उसे जवाब दिया गया। टैक्सी रुकने पर टैक्सी वाले को मुंह मांगा किराया देने के बाद वो एक बार फिर पैदल चल पड़े। जरा सी देर में वो कुशादा इलाके को छोड़कर तंग और पुरपेच गलियों वाले एक छोटे से इलाके में चल रहे थे। पुरपेच गलियों से गुजरता हुआ वो महबानों को लेकर एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गया। लकड़ी के दरवाजे पर कुंडी बजाकर दी जाने वाली दस्तक काफी जोरदार थी। फिर भी अंदर से तीसरी दस्तक के बाद रद्द अमल जाहिर किया गया। इस वक्त कौन है भाई, कौन आ गया? नींद में डूबी मर्दाना आवाज ने बेजारी से सवाल किया। दरवाजा खोल आमिर, मैं सरमद हूँ। इस जवाब पर फौरन ही दरवाजा खुल गया। तू और इस वक्त कैसे आ गया? सब खैर तो है? दरवाजा खोलते ही आमिर नाम के उस शख्स ने अपनी तशवीश का इजहार शुरू कर दिया, लेकिन फिर पीछे खड़ी महबानों को देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। अब वो मजीद कोई सवाल न कर सका। पहले अंदर तो आने दे, बाद में तेरे तमाम सवालात के जवाबात भी दे दूंगा। सरमद ने उसे हाथ से परे करते हुए अपने और महबानों के अंदर जाने का रास्ता बना दिया। वो बेचारा हैरान परेशान दरवाजा बंद करते उनके पीछे पीछे ही चल पड़ा। इतनी देर में सरमद महबानों को लेकर एक बैठक नुमा कमरे में पहुंच चुका था। आमिर भी वहीं आ गया। क्या चक्कर है यार, ये तू आज अपनी नीलम परी के बजाय किसको साथ लेकर घूमता है? क्या पटरी बदल ली है? सरगोशी में किया गया ये सवाल इस छोटे से कमरे में मौजूद महबानों के कानों में भी पहुंच गया। अंदर ही अंदर खिफ़त महसूस करने के बजाय वो ऐसी बन गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं, पटरी मेरी अभी भी वही है। बस यूं समझ ले कि उस पटरी पर दौड़ते रहने की ख्वाहिश ने मेरा पटरा कर दिया। अपनी नीलम परी को पाने के लिए ही एक कोशिश करने निकला था जनाब, लेकिन हालात कुछ और बन गए। इसे अपने साथ लेकर जान बचाने के लिए मुझे भागना पड़ा। अब मसला ये है कि इसे कहाँ रखूं? पूरे घर का तो तुझे मालूम है कि वहाँ की आबादी कितनी ज्यादा है और फिर वो इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी माँ बहनें सवाल कर करके मेरा मत्था खराब कर देंगी, इसलिए मैं तेरे पास चला आया। अब तू इसे अपने घर में रख ले। मैं कैसे रख लूं इसे? इस मुतालबे पर आमिर उछल पड़ा। कैसे क्या? बस मेरी खातिर ही रख ले। आस पड़ोस वालों से बोल देना कि रिश्ते की बहन है जिसे तूने अपनी माँ की खिदमत के लिए बुलवा लिया है। खाला जी इतनी बीमार है, किसी को तेरी बात पर शक भी नहीं होगा। और अम्मा से क्या बहाना करूंगा जनाब? वो तो इसे मेरी रिश्ते की बहन नहीं मानेगी ना। फिर क्या करूंगा? खुद को मिलने वाले मशवरे पर आमिर ने तंज से सवाल किया। खाला जी को जो तेरा मन करे ना वो बहाना घड़ के सुना देना। मुझे मालूम है कि तेरे लिए उन्हें बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। चाहे तो मेरा नाम ले लेना। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ। तफसीलात कल किसी वक्त मौका मिला ना तो फिर आकर बताऊंगा। तू इसके सोने और बाकी इंतजामात कर ले। वो उजलत में बोलता अपनी जगह से खड़ा हुआ। आमिर ने उसे रोककर कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो तो रुकने पर तैयार ही न था। वो तेजी से बाहर निकल गया। आमिर के साथ साथ महबानों भी हक्का बक्का उसे जाता देखती रही। लाहौर से एक बुरी खबर है सर। शहरियार की दफ्तर में आमद के थोड़ी देर बाद ही अब्दुल मनान ने उसे मुत्तला किया। क्या खबर है? उसने अब्दुल मनान की संजीदा शक्ल की तरफ देखते हुए हत्तुल इम्कान खुद को पुरसुकून रहते हुए पूछना चाहा, वरना अब्दुल मनान के अल्फाज ने उसे बेहद तशवीश में मुब्तला कर दिया था। उसके जहन में सबसे पहला अंदेशा महबानों के हवाले से ही सरसराया था। वो लाहौर में मोतीवाला के घर पनाह गुज़ीन थी। अभी पिछले दिनों उसे लाहौर के उस दारुल अमान से अगवा करने की कोशिश की गई थी जहां अब्दुल मनान ने उसे इस वसूख के साथ भिजवाया था कि वहां वो बिल्कुल महफूज रहेगी। महबानों की अपनी ही छोटी सी गलती की वजह से, लेकिन
उस महफूज दारुल-अमान में उसकी सलामती भी खतरे में पड़ चुकी थी। अगर ड्राइवर का दोस्त अपनी जान की बाजी लगाकर उसके अगवा की कोशिश को नाकाम ना बना देता तो वो जरूर चौधरी इफ्तिखार तक पहुंच चुकी थी। अब एक बार फिर अब्दुल मनान उसे इत्तला देता था कि लाहौर से बुरी खबर है। इस बुरी खबर का ताल्लुक महबानों से होने के खदशे ने उसे फिर से बेचैन कर दिया था। मोतीवाला के घर डाका जनी की वारदात में उसे और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया है। वाकया कल रात के बाद पेश आया था। ज्यादा तफसीलात का फिलहाल मुझे कोई इल्म नहीं हो सका, मैं देखता हूँ। और महबानो, उसके बारे में भी कुछ मालूम हुआ कि नहीं? वो भी तो मोतीवाला के घर में मौजूद थी। अब्दुल मनान की इत्तला ने उसके खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। मोतीवाला के घर होने वाली वारदात में महबानों के मुतासिर होने का बहुत ज्यादा इम्कान भी तो था। नहीं, अभी महबानों के बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं हो सकी। महबानों की वहां मौजूदगी क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी और हम उससे अपना कोई ताल्लुक शो भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस सिलसिले में किसी भी किस्म के सवाल जवाब को सामने लाने के बजाय खामोशी इख्तियार कर रखी है। हम वहां पहुंचकर सूरत हाल देखने के बाद ही इस सिलसिले में कोई इकदामात कर सकते हैं। मुमकिन है महबानो मोतीवाला के घर पर मौजूद हो और उसने पुलिस को वहां अपनी मौजूदगी के सिलसिले में कोई भी वजह बता डाली हो। बहरहाल लाहौर पहुंचने से पहले कोई भी लाएमल तय करना मुमकिन नहीं। अब्दुल मनान का जवाब दो टोक था। ओके, तुम लाहौर चलने की तैयारी करो। हमने महबानों को मोतीवाला के घर ना भी ठहराया होता ना, तो बहरहाल उससे मेरे ऐसे टर्म्स हैं कि इस मौके पर मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। उसने अब्दुल मनान को हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे। तवील रास्ता बिल्कुल खामोशी के साथ कटा। जिस वक्त वो लोग मोतीवाला की रिहाइशगाह पर पहुंचे, वहां जनाजों को रवाना करने की तैयारी की जा रही थी। इंतजामात मोतीवाला के एक करीबी साथी ने संभाल रखे थे। मोतीवाला का शुमार बड़े कारोबारी अफराद में होने की वजह से उसकी रिहाइशगाह पर शहर के तकरीबन हर काबिले जिक्र तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद थे। बिजनेस कम्युनिटी के अफराद के अलावा कई महकमों के आला अफसरान और सियासतदान लोग भी वहां नजर आते थे। मोतीवाला के कजन से ताजियत करने के बाद शहरियार मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा। अपने मामू लियाकत राना और कजन सज्जाद राना से भी उसकी मुलाकात हुई। चौधरी इफ्तिखार भी वहां पर मौजूद था और सबसे ज्यादा सरगर्म वही नजर आता था। ऐसा लगता था कि जनाजे के इंतजामात करने में मोतीवाला का कजन सारे काम उसी के मशवरे पर करता हो। वो बेचारा ऐसा यकीनन चौधरी इफ्तिखार के दबदबे और मोतीवाला के कारोबारी शरीक होने की वजह से करता होगा। शहरियार बज़ाहिर दूसरे लोगों के साथ बात करता था, लेकिन उसकी नजरें चौधरी इफ्तिखार का भी तेजी से जायजा ले रही थी। उसे उसके चेहरे पर छाए अफसुर्दा तासुरात बिल्कुल मसनूई नजर आते थे। यूं लगता था कि चौधरी अफसुर्दा होने की अदाकारी करता है और अंदर से दिल ही दिल में बहुत खुश है। जनाजा रवाना हुआ तो चौधरी सबसे आगे आगे था। घर की करीबी मस्जिद से मुल्हिका ईदगाह में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद ज्यादातर अफराद रुखसत होने लगे। वो सब मसरूफ तरीन लोग थे जिन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत के बाद यकीनन जाने का फैसला किया था, क्योंकि यहाँ आने के लिए भी उन्होंने यकीनन बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला होगा। मरने वालों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान रवाना होने वालों में मोतीवाला के करीबी अजीज, दोस्त और चंद मुलाजमीन शामिल थे। मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से मिलना चाहता हूँ सज्जाद भाई। सज्जाद शहरियार से हाथ मिलाकर वहां से उठ रहा था, तब उसने धीमी आवाज में उससे फरमाइश कर डाली। क्यों? सज्जाद फौरन चौंका। अभी कुछ दिन कबल मैंने आपके जरिए जिस लड़की को थाने से छुड़वाया था, वो लड़की मोतीवाला के घर पर ही मौजूद थी। मुझे उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करनी है। शहरियार ने आवाज मजीद धीमी करते हुए बताया। वहां इर्द गिर्द और भी लोग मौजूद थे और वो नहीं चाहता था कि किसी के कानों में भनक पड़े। तुमने उस रात भी मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया था। आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम बेहद परेशान नजर आते हो? सज्जाद राना ने सवाल किया। मैं बाद में आपको सारी तफसीलात बताता हूँ ना। फिलहाल ये समझ लें कि वो एक मजलूम लड़की है जिसे मेरी मदद की सख्त जरूरत है। इस वक्त भी मैं इंक्वायरी ऑफिसर से मिलकर उसके तहफ्फुज के बारे में यकीन दहानी करना चाहता हूँ। फिलहाल तो मुझे ये भी मालूम नहीं हो सका कि वो मोतीवाला के घर में मौजूद है या नहीं।
ओके, मैं इंक्वायरी ऑफिसर को ऑर्डर देता हूँ कि वो तुमसे मुलाकात कर ले। बल्कि तुम ऐसा करो ना कि राणा हाउस पहुंचकर ऑफिसर से मुलाकात कर लो। सज्जाद को शुरू से उसकी फरमाइशें पूरी करने की आदत थी, इसलिए वो यहाँ पर उसके लिए इनकार न कर सका। उसने मजीद बहस न की और उसका मुतालबा फौरन से पूरा कर दिया। थैंक यू सज्जाद भाई, थैंक यू वेरी मच। शहरयार उससे एक गर्मजोश मुसाफा करते हुए बोला और अपनी गाड़ी में आके ड्राइवर को राणा हाउस चलने का हुक्म दे दिया। अब्दुल मनान उसके साथ ही था। राणा हाउस में हस्बे मामूल उसकी मुमानी आफरीन भी मौजूद थी। लियाकत राणा की बैरूनी सरगर्मियां इतनी ज्यादा थी कि वो दिन की रोशनी में कम ही घर पर दिखाई दिया करते थे। सज्जाद अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहता था, इसलिए आफरीन राणा का बेशतर वक्त घर पर तन्हा ही गुजरता था। कभी कभार वो लियाकत राणा के साथ किसी फंक्शन में शिरकत करने चली जाया करती थी, लेकिन मिजाजन महफिल पसंद ना होने के बायस वो अमूमन घर पर रहने को ही तरजीह दिया करती थी। बड़ी ट्रेजेडी हुई है मोतीवाला की फैमिली के साथ। पहले जवान बेटा हादसे का शिकार होकर मर गया और अब दोनों मियाँ बीवी भी चल पड़े। जरा से अरसे में सारा खानदान खत्म हुआ। वो शहरयार के साथ हालिया वाक़े को डिस्कस करने लगी। हाँ, वाकई बात तो बहुत अफसोसनाक है। उसने गायब दिमागी से आफरीन राणा की बात की तायीद की। असल में तो उसका जहन महबानों में ही अटका हुआ था। अभी तक उसके बारे में कोई खास खबर नहीं मिली थी कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है। मोतीवाला के घर में जो हुजूम लगा हुआ था, इस हुजूम में वो किसी से महबानों की बाबत कोई सवाल नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि वहाँ चौधरी इफ्तिखार के साथ उसके कई कारिंदे भी मौजूद होंगे, लेकिन उसकी या अब्दुल मनान की कोई गैर मामूली सरगर्मी देखकर वो फौरन चौंक पड़ते, इसलिए वो चुप थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, कत्ल की इस वारदात के पीछे क्या वजह हो सकती है जनाब? वैसे तो कहा जाता है कि डाका पड़ा है और डाकू बहुत सा रुपया और जेवर लूटने के साथ साथ मोतीवाला और उसकी बीवी को कत्ल करके चल पड़े। मुझे लग रहा है कि मामला कोई और है। पहले बेटे की हादसाती मौत और अब दोनों मियाँ बीवी के कत्ल की वारदात। इन तमाम बातों से तो ऐसा जाहिर होता है कि किसी की मोतीवाला से बहुत ज्यादा दुश्मनी है। हो सकता है खानदान का कोई फर्द इसमें इन्वॉल्व हो। अक्सर दौलत हासिल करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। आफरीन राणा को मुश्किल से ही कोई सामे दस्तयाब होता था। अब शहरयार हाथ लगा था ना, तो वो दिल खोल खोल कर ख्याल आराइयां जाहिर कर रही थी। फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हुमानी जान, मैंने सज्जाद भाई से कहा था कि इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से मेरी मुलाकात करवा दे। थोड़ी देर में वो ऑफिसर यहाँ पहुँच जाएगा। शहरयार ने उन्हें जवाब दिया। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ज्यादातर उन्होंने ही निभाई थी, इसलिए वो उनका बहुत ज्यादा अदब और लिहाज किया करता था। इस वक्त भी अपना मूड ना होने के बावजूद वो उनके तमाम सवालात के जवाबात खामोशी के साथ देता चला जा रहा था। यानी तुम उस ऑफिसर से मुलाकात के लिए यहाँ रुके हो, हमसे मिलने नहीं आए? उन्होंने सवाल किया। जी हाँ, मुलाकात के फौरन बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे। असल में तो ये मेरा बिल्कुल इत्तफाकी टूर था, वरना मुझे वहाँ इतने मामलात देखने थे कि फिलहाल कहीं आने जाने की मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं। लेकिन अब क्या करें, मैं किसी दिन इत्मीनान से सिर्फ आपसे मिलने के लिए लाहौर आऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा, कोई काम नहीं करूँगा। शहरयार ने उसे तसल्ली दी। मुझे इस किस्म के वादों की हकीकत बहुत अच्छे तरीके से मालूम है बेटा। तुम्हारे मामू के साथ रहते मैंने बहुत वक्त गुजारा। सज्जाद की मसरूफियत का आलम भी देखती रहती हूँ। मुझे इल्म है कि हमारे खानदान के मर्दों के पास घर और घर वालों के लिए कितना वक्त होता है, और कभी होता है और कभी बिल्कुल नहीं होता। उनके लहजे में शिकवा ही शिकवा था, मगर इससे कबल के शहरयार उन्हें कोई तसल्ली देता, वो खुद ही बात बदलते हुए बोली, जरा किचन का चक्कर लगा कर आती हूँ। साबिर से कहा तो था कि कुछ बना ले, पता नहीं वो अब तक क्या करता है। वो कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद साबिर ने आकर खाने की इत्तला दे दी। गेस्ट रूम में मौजूद अब्दुल मनान को भी डाइनिंग रूम में बुलवा लिया गया। ड्राइवर के खाने का इंतजाम साबिर और दीगर मुलाजमीन के साथ ही किया गया था। उन लोगों के खाने से फारिग होने के थोड़ी देर बाद ही इंक्वायरी ऑफिसर घर पहुंच गया। मैं रफीक खोकर हूँ सर, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मोतीवाला केस का इंक्वायरी ऑफिसर। डीआईजी साहब का हुक्म मिला था कि आप
केस के सिलसिले में मुझसे ذاتی طور पर मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए मैं पहली फुर्सत में राना हाउस पहुंच जाऊं। मैंने उनके हुक्म की तामील की। अब आप फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। इंक्वायरी ऑफिसर्स के उमूमी तासुर के बरखिलाफ उसकी शख्सियत में नरमी और तहजीब की झलक नजर आती थी। वो दराज कद, स्मार्ट और जवान आदमी था, जिसके सिर्फ उठने बैठने और बात करने के अंदाज से ही शहरियार ने उसके चुस्त होने का अंदाजा लगा लिया था। सबसे पहले तो मोतीवाला के केस पर अब तक की गई तहकीकात के बारे में कुछ बताओ, शहरियार ने उससे सवाल किया। उसे यकीन था कि इब्तिदाई तहकीकात में ही इंक्वायरी ऑफिसर को महबानों के बारे में जरूर कुछ न कुछ मालूम हो जाएगा। कत्ल तकरीबन आधी रात के वक्त किया गया है जनाब। मोतीवाला के बेडरूम में मौजूद खुली हुई खाली तिजोरी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डाका जनी की वारदात थी। शायद मोतीवाला साहब और उनकी मिसेज ने डाकुओं के खिलाफ कोई मज़ाहमत करने की कोशिश की होगी, इसलिए उन्हें कत्ल किया गया, मगर मुझे इस थ्योरी पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं आता। लाशें बेड पर इस तरह पाई गई हैं जैसे किसी ने सोते में उन पर वार किया हो। दोनों के जिस्म पर चाकू के कई वार किए गए हैं और फिर उसके बाद उनके गले भी काट कर अलग कर दिए गए। इंक्वायरी ऑफिसर की इस बात पर शहरियार के अलावा अब्दुल मनान भी फौरन से चौंक पड़ा। कत्ल का ये अंदाज कुछ अरसे पहले किए जाने वाले सफदर और हूरा के कत्ल से मुशाबहत रखता था। उन दोनों के चौंकने को महसूस किए बगैर रफीक खोकर ने अपनी बात को जारी रखा। मेरा ख्याल है कि अगर कत्ल किसी मज़ाहमत की वजह से किया गया होता ना, तो लाशों को बिस्तर के बजाय नीचे फर्श पर या किसी और जगह पाया जाना चाहिए था। अगर कत्ल बिला जवाज था तो इसका तो ये मतलब निकल सकता है कि डाकू फितरतन तशद्दुद पसंद लोग थे, जिन्होंने सिर्फ तफरीहन कत्ल किए। मोतीवाला का चौकीदार भी अपने केबिन में मुर्दा पाया गया है। उसे गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल किया गया। निगरानी पर मामूर कुत्ते गोश्त में जहर की शमूलियत की वजह से मारे गए। लगता है कि वारदात बहुत सोच समझकर और मुनज़्ज़म तरीके से की गई है। आने वाले मुजरिम अच्छी तरह से जानते थे कि कोठी की हिफाजत के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कुत्तों को हलाक करने का बंदोबस्त किया। आतिशी हथियार इस्तेमाल न होने की वजह से किसी किस्म का शोर शराबा भी न फैला। मैंने कोठी में से मुख्तलिफ मकामात पर से खसूसन मोतीवाला के बेडरूम से फिंगरप्रिंट्स उठवा लिए हैं। मुमकिन है इन तमाम फिंगरप्रिंट्स से हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वैसे मुझे इस सिलसिले में ज्यादा उम्मीद भी नहीं। ये लोग तो बहुत मुनज़्ज़म मालूम होते हैं और अब आम मुजरिम को भी इस बात का शऊर आ चुका है कि जाए वारदात पर अपने फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने। पुलिस को वारदात की इत्तला किसने दी थी जनाब? रफीक खोकर ने अब तक जो कुछ बताया था उसमें महबानों का जिक्र अभी तक नहीं आया था। शहरियार ने उसे मजीद कुरेदने के लिए सवाल किया। इत्तला वहां काम करने वाले माली ने दी थी। वो सुबह 7 बजे सबसे पहले ड्यूटी पर आया करता था। वो आया तो उसने देखा कि कोठी का जेली गेट खुला हुआ है। उसे कुछ तशवीश हुई और उसने चौकीदार के केबिन में जाकर झांका। वहां उसे चौकीदार की लाश नजर आई तो वो उल्टे कदमों बाहर निकल गया और करीबी कोठी के चौकीदार को सूरत हाल जाकर बता दी। उस चौकीदार ने अपने मालिक को बताया और उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। बाकी 2 लाशें पुलिस ने खुद दरियाफ्त की थी। क्या कोठी में चौकीदार के अलावा कोई दूसरा मुस्तकिल मुलाजिम नहीं था? नहीं। ड्राइवर और माली समेत तमाम मुलाजमीन को रात 11 बजे छुट्टी दे दी जाती थी। सिर्फ 2 मियाँ बीवी मुस्तकिल कोठी में रहते थे, लेकिन आजकल वो भी छुट्टी पर गए हुए थे। मैंने उनके पीछे बंदा भेजा है, वो उन्हें गांव से ले आएगा। पहले मरहले में हमने तमाम मुलाजमीन को तफ्तीश में शामिल कर लिया है। अमूमन ऐसी वारदातों में मुलाजमीन की शमूलियत का इम्कान ज्यादा होता है। रिश्तेदारों में से किसी पर इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि मोतीवाला के कत्ल से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था। वो अपनी जिंदगी में ही बेटे के मरने के बाद इस बात का ऐलान कर चुके थे कि उन्होंने अपनी कुल जायदाद अपने बेटे के नाम से ट्रस्ट कायम करने के लिए वक्फ कर दी है। वारदात करने वाले को मोतीवाला के घर से जेवर और कैश के सिवा कुछ नहीं मिला होगा और जाहिर है मोतीवाला जैसे अक्लमंद आदमी ने तमाम जेवर और कैश तो घर पर रखने की कोई गलती नहीं की होगी ना। उन दोनों चीजों को
बैंक में भी अच्छे तरीके से महफूज किया गया होगा।